Okay. So PHP. Today's topic is type of values or data types. So there are 8 types of values or data types in PHP. It means PHP provides 8 types of values. 4 are scalar, means that is single value, and 2 are compound, and remaining 2 are special. So there are 8 type of values or data types. तो जैसे अपन बोल रहे हैं कि 8 टाइप्स के वैल्यूज या वैल्यूज टाइप ऑफ वैल्यूज कहा जा सकता है या डेटा टाइप्स, यानी डेटा टाइप्स को आप टाइप ऑफ वैल्यूज भी बोला जा सकता है. तो ऐसे 4 जो है वो स्केलर होते हैं, सिंगल वैल्यूड, जिनकी वैल्यूज जो है वो सिंगल रहेगी. इंटीजर्स हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया. तो ये हो गया टोटल 4. देन उसके बाद 2 जो है 2 आर compound, that is collection type, arrays and objects, and remaining 2 are special types, that is resource and null. तो अभी आप लोगों ने अभी जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़े होंगे उसमें 4 स्केलर तो आपने पढ़ा ही है, कंपाउंड में भी एरेज और ऑब्जेक्ट पढ़ा ही है ऑलरेडी, नल भी पढ़ा हुआ है. सिर्फ रिसोर्सेस एक नया डेटा टाइप्स यहाँ पे पीएचपी में ऐड हुआ है. सो अपन वन बाय वन लेते हैं. तो सबसे पहले देखा जाएगा स्केलर की बात करते हैं. इंटीजर्स आर होल नंबर सच एज 1, 12, 256 एंड एनी अदर. इट अगेन डिवाइडेड ऑक्टल नंबर सिस्टम, you know, 0 to its range from 0 to 7. Hexadecimal number system 0x means 0 to 9, and letter A to F. Binary, that is obviously 0 and 1 and begin with OB, OX. तो ये OB, OX ये रिप्रेजेंटेशन है उसका. तो ये ऑलरेडी आपने इसके पहले C++, जावा, इन सभी लैंग्वेजेस में पढ़ा होगा, तो इस पे अपन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे. नाउ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. अब सबसे पहले अपन स्केलर्स की बात करते हैं. तो वो हो गया इंटीजर का पार्ट कंप्लीट हुआ. देन स्केलर में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑल्सो रेफर्ड एज रियल number which represent numeric values with decimal digit, that is fractional part. For example, 12.30, 12.55 are the example of floating point number. And floating point number also have limits, depend on machine's detail. PHP floating point number are equivalent to range of double data type of your C compiler. C compiler में जो range थी डबल की, वो उसकी रेंज C कंपाइलर में थी आई थिंक 8 बाइट. तो फ्लोट जो PHP में जो फ्लोट यूज होता है उसका भी 8 बाइट है. मीन्स all the PHP data types have enhanced range. String, you know very well, it includes core level support for creating and manipulating string. क्योंकि जितने भी आपको string handle करना है तो उसके लिए आपको create या manipulate करना है, तो PHP में ये core level पे किया जाता है. So string is a sequence of character or collection of characters of arbitrary length. इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी रख सकते हैं. आप उसको सिंगल कोट में लिखो या डबल कोट में. So string literals, again it's a literal delimited by either single or double quote. Okay, तो सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल बिग डॉग, फैट हॉग, all are the string, and that string have some escape sequence characters in double quoted string, like डबल कोट्स. क्योंकि आप PHP में स्ट्रिंग में यूज कर रहे डबल कोट टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग. अब आपको डबल कोट अगर लगाना है देन यू हैव टू यूज स्लैश एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, /n/r/t// $, ओपनिंग ब्रेस,
that is left brace slash closing brace, that is right brace, left bracket right bracket slash 0 throw slash 777 ask for representing the octal values, and slash x is representing for hexadecimal values. These all are the strings. मीन्स स्केप सीक्वेंस का एक कॉन्सेप्ट हो गया, और आपका डबल कोड या सिंगल कोड पे आप लगाते वही होगा. सो ये ऐसे टोटल 3 हो गए, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, एंड लास्ट फोर्थ scalar values are booleans. So boolean value represent a truth value, that is 0 or 1, or true or false, true or not, whatever you say. Now सेकेंड कैटेगरी, ये हो गए 4. अब अपन बात करते हैं एरेज और ऑब्जेक्ट की. दिस इज अ कलेक्शन डेटा टाइप. So if you want to store group of values, then you have to use array, which is identified by a position, is number, starting position, because PHP uses concept of C language, that's why array will start from 0, that is this is the first position, or some identifying name, or we can use string also as an index, and that if you use string, then such type of array is called associative index. So आप array का use पता है आपको, C++ में आप करते थे, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए array का यूज किया जाता है, और उसमें एक सबस्क्रिप्ट भी होता है जिसे इंडेक्स कहा जाता है. सो इन PHP, suppose if you want to represent some name of the writers or any person, then you have to use array. $person index is 0, 1, 2. So Edison Wankel Crapper, this is the example. तो आप एडिसन वैंकल क्रैपर को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, एरे के फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पहले स्टार्टिंग के 3 जो एग्जांपल्स है, जिसमें 0, 1, 2 ये इंडेक्स में न्यूमरिक इंटीजर इंडेक्स का यूज किया गया है. इफ यू वांट टू यूज स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग इज आइडेंटिफाइंग नेम, दैट इज $creator, light bulb equals to Edison. तो इंडेक्स में आप स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं यूजिंग सिंगल को. $creator रोटरी इंजन वैंकल ने, उसकी वैल्यू वैंकल दे दिया आपने. क्रिएटर टॉयलेट क्रैपर. तो ये जो है आप इंडेक्स की जगह पे क्या दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, दिस, और कैरेक्टर भी दे सकते हैं. दिस इज द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इन PHP. अभी मैं जितने भी आपको नोट्स दे रहा, लेक्चर ले रहा हूँ, उसमें मैक्सिमम आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीजें तो मालूम है, बट डिफरेंस जो है, जैसे कि अपन ने केस सेंसिटिव की बात किए थे, तो उसमें वेरिएबल केस सेंसिटिव है, बाकी सब इनसेंसिटिव है. ये डिफरेंस था एक सबसे बड़ा PHP में. एरे में आपका ये कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग का आ गया एक कॉन्सेप्ट, जिसे एसोसिएटिव इंडेक्स कहा जाता है. सो मेन पॉइंट इज एसोसिएटिव इंडेक्स. आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है एरे, यू नो वेरी वेल अबाउट द एरे, बट एसोसिएटिव इंडेक्स इज मोर इंपॉर्टेंट इन PHP. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल फॉर दिस. देयर आर सेवरल वेज टू लूप थ्रू एरे. आप एरे को लूपिंग का यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इन PHP मैक्सिमम एरे विल used using for each statement. So for each is a looping statement. Suppose for each, for example, for each $person as $name, okay, echo hello $name. तो $name क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, और hello जो $name है उसमें जो भी वैल्यूज होगी वो प्रिंट होती जाएगी. कब तक, टिल द लास्ट इंडेक्स. और ये फॉर ईच कैसा होता है, उसका एक्चुअल डिटेल जो है वो अपन फॉर ईच, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे फॉर ईच का, उसमें डिटेल देखेंगे.
तो आप ये मान के चलिए इफ यू यूज array then you have to use for each in maximum cases. Another example for dollar creator as dollar invention. इन्वेंटर कौन है उसका, एक सिंबल यूज हुआ है एरो, मतलब होता है उसका रिप्रेजेंटेशन. इको क्रिएटेड द, तो आप क्या कर सकते हो, यूजिंग इको कमांड यू हैव टू प्रिंट, you use echo command and print the values of the variable. Okay, this is array. More detail for for each statement in next lecture.